Good morning everyone. So today in this video we are going to start class 8 chapter number 5, that is human resources. In chapter number 1 we study what is resources. There are three types of resources: natural resources, man-made resources and human resources. So we studied about these three resources in first chapter also, but in briefly about human resources we are going to study in this chapter. So let us start. So human resource, firstly I will be giving you a short recap of resources. What are resources? Anything that satisfies our need is called a resource. Anything in the entire universe which satisfies our need, मतलब जो हमारे काम आ रहे हैं, जो हमारी चीज़ों को, हमारे उस डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उसे रिसोर्सेस कहते हैं. जो भी चीज़ हमारे काम की है, जो भी चीज़, वो सारी की सारी रिसोर्स कहलाती है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल एनीथिंग, पेन, paper, this tablet, anything that satisfies our need is called resources. So resources, one of the type of resources is human resources. So what is human resource? Human resource refers to the number and abilities of human have knowledge, skill and technology to make anything a resource. So what is human resource? Human resource means the people जो लोग हमारे रिसोर्स की तरह काम आ रहे हैं, मतलब जो पीपल हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो पीपल हमारे काम में आ रहे हैं, जो लोग हम डेली हमारे लिए करते हैं, डेट आर ह्यूमन रिसोर्सेज. Means doctor, any people which satisfies our need is called human resource. So bookish definition is, it refers to the abilities of human. Abilities, entire people is not a human resource. The people जो हमारे काम आते हैं, जो कुछ कंट्री के लिए या फिर पीपल के लिए कुछ काम आ रहे हैं, they are only resource. That's why we have written that refers to the number and abilities of humans. So we know that people have knowledge, skill and technology to make anything a resource. So firstly, how a thing make a resource? We, people are the only one people are the only one which transfer things to resources. How? By their technology, skill and knowledge. These can be the three criterias for the people as a resource: if they have knowledge, if they are skillful, and if they know how to use technology. So we can consider them as a resource. So again I am giving you a short recap. This is not in our chapter, but this is a base. What is human resource? Human resource refers to the abilities, number and abilities of human. Abilities in the terms of
abilities abilities in the terms of physical physical mental and physical abilities. Human resource refers to the number and abilities of people which are helpful to us. The people which satisfies our need means your mother satisfies your needs, your teacher, doctor, engineer, everything, every people which satisfies our need. People, how people makes resources. Anything in the entire universe gets converted into resources by the help of people, by the people, by the use of knowledge, skill, and technology. That's why people are special resource. Anything in the universe, anything are made into resource by people only. So I hope it is clear. So let's move to next topic. Another thing given in your book is that which people are resources. Which people are resources. That I had already told you earlier. The people which satisfies our need. But which people? What are the criteria on the basis which is divided into the use? What are the criteria by which peoples are called as resources? If people are healthy, if the person is healthy, educated, and if he is motivated, then these three, if a person is having these three qualities, so in future or he can be a resource. Which people can be resource? If the people is healthy, if the person is healthy, educated, and motivated, so he can be a resource. So human resource, we know that in chapter number 1 we studied that resources are unequally distributed. There were three factors. This is your homework. There were three factors which depends on the distribution of resources. In chapter number 1 there is, so it's your homework to research upon it. So like other resources, human resources also unequally distributed. मतलब वो in the earth there are, they vary from place to place. Humans vary from place to place. मतलब एक जगह में ऐसे नहीं कि पूरे अर्थ में सारे उसका पॉपुलेशन का रेशो सेम है, सेम नहीं है. देख तो आप कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, पर एज़ कम्पेयर टू इंडिया रशिया में बहुत कम लोग हैं. अफ्रीका में भी बहुत सारे लोग हैं, पर एज़ कम्पेयर टू अफ्रीका कनाडा में कम लोग हैं. तो मतलब कि ह्यूमंस आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तीसरी चीज़ ये है कि दे डिफ़र in their education level, age and sex. इसका मतलब है सारे पीपल एक नहीं, जैसे सारे रिसोर्सेज एक नहीं होते. आपका जो पेन जो काम करता है रिसोर्स के तरीके से, वो आपका नोटबुक काम नहीं करता. मतलब रिसोर्सेज means every resource have its own pattern of using. So humans are also different. They are different on the basis of the education level, age and sex. देखो जैसे आपके पास एक रिसोर्स है डॉक्टर, वो किस बेसिस पे आपका है डिवाइडेड है? वो एजुकेशन के बेसिस पे है. ऑन द एज लेवल, एज मीन्स ह्यूमंस को अगर आप कैटेगराइज करोगे, तो आप उनको कैटेगराइज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन लेवल. कौन कितना पढ़ा लिखा है, ऑन देयर एज. उसकी जैसे
चिल्ड्रंस हैं, children, so they are not a resource, means they are a different category of people. And sex means male or female. Male or female, people used to talk about gender equality. Gender equality is there, but most of the professions are done by male, so people also vary in their sex. Till now we studied that humans, healthy, educated and motivated people develop into resources. Resources are unequally distributed over the earth. And third point is they differ in their education level, age and sex. Now your next in, do you know there is a pointer about Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. It is very important that it was started in 2015. It targets, this scheme is to encourage employment नौकरी देना, employment towards skills and by giving quality training to probable. जो ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY, it was started in 2015 by the government of India. इस स्कीम में लोगों को इकट्ठा करा गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको स्किलफुल बनाया गया, उनको रिसोर्स बनाया गया और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया गया. Now the next topic of your book is, which we have discussed a bit now, that is distribution of population. So what is the distribution of population? Means the pattern in which people of the world is distributed. Distribution of population, leave the book's definition. अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जैसे ये पूरा आपका अर्थ है, तो फिर पॉपुलेशन, कुछ लोग यहाँ रह रहे, कुछ लोग यहाँ रह रहे, कुछ इधर रह रहे, कुछ इधर रह रहे, इधर 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 इधर, ये अलग एरिया हो गया, इस एरिया, ये इतना एरिया हो गया, इतना एरिया हो गया. मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिवाइड हो रखी है, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. मतलब अगर 100 पीपल रह रहे हैं इस अर्थ में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर रह रहे हैं, पूरे अर्थ में रह रहे हैं, अलग अलग जगह में रह रहे हैं, तो उसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. इन इंग्लिश वी यूज्ड टू से दैट द पैटर्न इन विच द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड. द पैटर्न का मतलब मैंने आपको समझाया कि अगर ये कोई एरिया है, कुछ लोग इधर रह रहे हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो वही द पैटर्न इन विच पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड. पॉपुलेशन बटी हुई है, पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट की फैक्ट है कि मोर देन 90% of world's population lives on 30% of land. अब आप लोग बोलोगे कि लैंड तो 30% है ही नहीं अर्थ में, तो 30% लैंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है, जैसे ये पूरा अर्थ है, इस अर्थ के 30% हिस्से में, इस अर्थ के 30% हिस्से में 90% पॉपुलेशन है. इस अर्थ के 30% हिस्से में, अर्थ के 30% हिस्से का मतलब लैंड, सरफेस में. वाटर 71% होता है, हमको पता है, मतलब 29% लैंड है. उस 29% लैंड में से 30%, 29, आप बोलोगे 30% कहाँ से बन गया? अब ये जो 29% है, मैथ्स में पढ़ोगे, 29%
को हम इंडिविजुअली ले रहे हैं। अभी हमने ये पूरे अर्थ का निकाला है। अर्थ में 71% वाटर है और 29% लैंड है। पर जब हम लैंड को अलग से उसके बारे में कैटेगराइज करेंगे, उसके पर रेशो निकालेंगे, तो लैंड 29% होगा, 100% लैंड। अब इस लैंड को हम 100% मानेंगे। इस 100% लैंड के 30% लैंड में 90% पॉपुलेशन रहती है। मतलब जैसे ये आप लोगों की सोसाइटी है, ठीक है, यहाँ पर 4 सेक्टर्स हैं। इस सेक्टर के माना बात पहले सेक्टर में बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही है एज़ कम्पेयर टू दिस पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पर 90% पॉपुलेशन रह रही है सोसाइटी की। इसका मतलब ये है, कंक्लूजन हमको ये मिलता है कि पीपल आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 90% पॉपुलेशन, अगर 100% पीपल, अगर माना हुआ 100 लोग रह रहे हैं इस पूरे से लैंड, ये पूरा लैंड है, वाटर हटा दो, माना बात हमने अर्थ के सारे लैंड को इकट्ठा कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो फिर जो ये लैंड है पूरा, इसमें 90%, 100 में से 90 लोग इस 30% की जगह में रह रहे हैं। तो आप बोलोगे बाकी के 70% जगह में सिर्फ 10% लोग रह रहे हैं, सिर्फ 10 लोग रह रहे हैं। इतना डाइवर्स है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कि बस कि 90% पॉपुलेशन तो 30% में रह रही है, पर बाकी का जो इतना ज़्यादा 70% लैंड है, वहाँ पर सिर्फ 10% पॉपुलेशन रह रही है। ओके। 3/4 of world's population lives in Asia and Europe. 3/4 of world's population lives in Asia and Europe। जैसे मैंने आपसे कहा कि 90% पॉपुलेशन 30% एरिया में रह रही है। 90% पॉपुलेशन 30% एरिया में रह रही है, तो वो 30% एरिया है किसका? एशिया और यूरोप का। ये अर्थ है, ठीक है। मैं रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से ये अफ्रीका, इधर से यूरोप, इंडिया, यहाँ से चलो, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर जो 30% लैंड है एशिया और जो यूरोप में, 3/4 पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इज लिविंग। 3/4 का मतलब कितना हुआ? 75%। मतलब जो 7 कॉन्टिनेंट्स में से 2 कॉन्टिनेंट्स में 75% पॉपुलेशन रह रही है। मतलब बाकी के 5 कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ 25% ऑफ पॉपुलेशन रह रही है। इससे हमको ये समझ में आता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पर बहुत कम। जैसे इंडिया को देख लो, इंडिया में कितने सारे लोग रहते हैं, पर एज़ कम्पेयर टू इंडिया रशिया में कितने कम लोग रहते हैं। तो यही है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों रह रहे हैं लोग इंडिया में इतने ज़्यादा, कि पॉपुलेशन में जैसे एशिया और यूरोप में इतने ज़्यादा लोग क्यों रह रहे हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। एक और पॉइंटर है कि 60% ऑफ वर्ल्ड्स population lives in 10 60% of population in just lives in 10 countries। मतलब पूरे अर्थ की 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 टॉप 10 कंट्रीज़ में रह रही है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये समझ गए होंगे आप कि जो अगर हम जैसे इंडिया टॉप कंट्री है इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे ही अगर हम बैकवर्ड चलते रहे, मतलब फॉरवर्ड चलते रहे, जैसे इंडिया है तो फिर उसके बाद चाइना है, अगर हम ऐसे चलते रहे, ऐसे टॉप 10 कंट्रीज़ को अगर हम लिस्ट बनाए उसकी, तो उसमें 60% ऑफ द पॉपुलेशन रह रही है।
There are more than 200 plus countries which are in, given the rights of being a country. 200 plus countries, पर उन 200 कंट्रीज में से 10 कंट्रियों में 60% पॉपुलेशन रह रही है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर सोना चांदी तो नहीं बढ़ रही, जो इतनी सारी पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है। इनको भी हम पढ़ेंगे। और जो टॉप 10 कंट्रीज़ है that are according to the it is according to wait according to 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है ये। ओके, टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट। वहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में चाइना गिवन होगा टॉप पे। मैं भी चाइना को लिख रहा हूँ क्योंकि पर हमको पता है कि इंडिया है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में, पर ये 2011 के अकॉर्डिंग है, तो मैं चाइना को ही लिख रहा हूँ। चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया, देन जापान। ये टॉप, ये जो 10 कंट्रीज़ हैं, इन 10 कंट्रीज़ में 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आया पेपर में, व्हाट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, 3 नंबर का आया, तो सबसे पहले आप पहला जो मैंने डेफिनेशन बताई, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक उसको लिख लोगे। तो फिर ये वाला फैक्ट लिख सकते हो, मोर देन 90% पीपल लीव। और तो फिर ये वाला लिख सकते हो, ऑलमोस्ट 3/4 पॉपुलेशन। अगर 5 नंबर का है, मैंने आपको 5 पॉइंट बता रखे हैं। पहला डेफिनेशन तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन लीव्स इन 30% ऑफ द एरिया। और तीसरा की 3/4 मतलब 75% ऑफ द पॉपुलेशन लीव्स इन एशिया एंड यूरोप, ये लिख सकते हो आप। और एक ये वाला 60% पॉपुलेशन स्टे इन 10 कंट्रीज़। और ये 5वां पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, एक कंट्री से नाम मत लिखना, फालतू का टाइम वेस्ट होगा आपका। और है दैट क्या है, वेरी फ्यू पीपल lives in very few people lives in high latitude areas, tropical, राइटिंग मेरी इतनी, फर्स्ट इज high latitude areas, and the second is tropical desert, third is high mountain areas, चौथा क्या है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। हाँ, कि वेरी फ्यू पीपल लिव्स इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, मतलब पहाड़ों समझ सकते हो, माउंटेन्स में। क्यों रहती है, इसका भी रीज़न आपको पता है। पहाड़ों में ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होती है, थोड़ा अनसिविलाइज्ड कल्चर होता है वहाँ पर नेचर तो बहुत अच्छा है, ये मानो हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में, पर रिसोर्सेज ईज़िली अवेलेबल नहीं रहते हैं। सो दैट्स वाई पीपल डजंट लिव देयर। ट्रॉपिकल डेजर्ट में पता है आपको, वाटर की मेन इशू है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, सो दैट्स वाई पीपल ऑल्सो डिडंट स्टे देयर। तीसरा पॉइंट है आपका हाई माउंटेन एरियाज़ मतलब ज़्यादा ही हाई लैटिट्यूड एरियाज़ का मतलब हो गया, जैसे मोस्टली उत्तराखंड को देख सकते हो आप, उस जगह हाई माउंटेन एरिया में भी नहीं रहते आप। एंडीज माउंटेन रेंज लो और माउंटेन रेंज लो, वहाँ पर नहीं रहते लोग। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आपको पता ही है कि आजकल के पीपलों को तो बहुत सारे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी देखनी, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इतना बड़ा फॉरेस्ट है इक्वेटोरियल, तो वहाँ पर भी पीपल नहीं रहते हैं। 5वां पॉइंट हो गया ये आपका। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच यू कैन राइट in your exam. So moving forward to the next topic. So the next topic is population density. Population को हमको मतलब पता है
द लिविंग ऑफ पीपल, जहाँ पर पीपल बहुत ज़्यादा रहते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं. द ग्रुप ऑफ पीपल, द कलेक्टिव नाउन गिवन टू ए पीपल इज पॉपुलेशन. डेंसिटी, फिजिक्स में आपने डेंसिटी का मतलब पढ़ा होगा. डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी मीन्स, डेंसिटी इज मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब जैसे कोई एक सब्सटेंस है, कोई एरिया है, वॉल्यूम है, उसके अंदर कितना मास है, मतलब उसके अंदर चीज़ें कितना स्टफ़, कितनी चीज़ें भरी हुई है, उसे डेंसिटी कहते हैं. जैसे आपके आपके एक कमरा है, आपका रूम है, उसके अंदर माना बात 15 पीपल हैं, तो फिर इस उसकी डेंसिटी हुई. मतलब किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, किसी सरफेस एरिया या किसी वॉल्यूम के अंदर कितना स्टफ़ इनसाइड भरा हुआ है, उसी को उसकी डेंसिटी कहते हैं. तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर किलोमीटर स्क्वायर इन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी. मतलब कितने लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं, वही उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी. मतलब जैसे कोई ये एरिया है 1 किलोमीटर का, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एरिया, ये एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है. उसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर 1 किलोमीटर स्क्वायर. जैसे अगर यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, 13 पीपल रह रहे हैं अगर यहाँ पर, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 13 हुई. इस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 13 हुई. मतलब कि कितने लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में रह रहे हैं, वही उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी हुई. जैसे आपके स्कूल में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी या फिर आपके घर में ज़्यादा होगी. मतलब आपके स्कूल में ज़्यादा होगी क्योंकि आपके स्कूल में ज़्यादा लोग रह रहे हैं. जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको. राजस्थान, राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी या फिर बिहार की. क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी या बिहार की? बिहार की ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी का मतलब यही होता है कि छोटी चीज़, कोई छोटी सी जगह अगर उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा डेंस कहलाएगी. वो चीज़ ज़्यादा डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. इस इक्वेशन से हमको ये समझ में आता है, अगर अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, मतलब अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, पर अगर वॉल्यूम कम होगा, मतलब छोटी जगह होगी, पर मास की वैल्यू यहाँ क्या है? कांस्टेंट है. मास क्या है यहाँ? कांस्टेंट. पर अगर वॉल्यूम की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होगी, छोटी सी जगह होगी, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी. जैसे राजस्थान है, राजस्थान की बहुत बड़ी जगह है, पर वहाँ पर लोग उतने नहीं रह रहे हैं, तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हुई. पर बिहार को ले लो, बिहार छोटा है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान इन द टर्म्स ऑफ एरिया, पर उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो गई. मैथमेटिकल टर्म्स में समझाया मैंने आपको पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है. पॉपुलेशन डेंसिटी का क्वेश्चन आया, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे. पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर स्क्वायर. और दूसरा एक फैक्ट है कि द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज़
of the whole world. Average population density of whole world is 51 persons 51 persons per किलोमीटर स्क्वायर। मतलब एवरेज निकालना, मतलब औसत, मतलब एवरेज, मतलब पूरे अर्थ का हमने पूरे अर्थ को 1-1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में काट रखा है। तो फिर किसी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में माना बात 500 लोग रह रहे हैं, किसी में 30 रह रहे हैं, किसी में 60 रह रहे हैं, किसी में 200 रह रहे हैं, किसी में 40 रह रहे हैं, किसी में 20 रह रहे हैं, किसी में रह ही नहीं रहे। तो ऐसा अगर जब हमने एवरेज निकाला पूरे अर्थ के लैंड का, एक पर हर किलोमीटर स्क्वायर का अगर हमने जब एवरेज निकाला, तो फिर हमको ये मिला कि 51 पर्सन्स एक एवरेज यूनिट है जो कि पूरे अर्थ के की पॉपुलेशन डेंसिटी है। मतलब द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, मतलब पूरे अर्थ के अगर एक लिया जाए, अर्थ का औसत लिया जाए, उसमें अर्थ के 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 51 पर्सन्स रह रहे हैं। बट दिस थिंग्स चेंज इन द टर्म्स ऑफ इंडिया में 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इंडिया में आप गए तो यहाँ ये एकदम कंफर्म हो सकता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर की जगह पर आपको 382 पीपल मिलेंगे रहे हुए। ओके, मतलब इंडिया का लैंड मास को हमने डिवाइड करा 1 किलोमीटर स्क्वायर में। हमने देखा जैसे एक जगह है वहाँ पर 30 रह रहे हैं, एक जगह और 100 रह रहे हैं, एक जगह 500 रह रहे हैं। ऐसे ही हमने सारी जगह का नोट डाउन करी वैल्यूज़, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, तो उसका एवरेज निकाला, उसका औसत निकाला, उसका एक मीन वैल्यू निकाली। तो इंडिया में आपको 51 पीपल रहते हुए दिखेंगे इन पर किलोमीटर स्क्वायर। वन मोर पॉइंट इज देयर, साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट population density followed by ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। मतलब इससे हमको ये पता चल रहा है कि एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब एशिया के लैंड में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, धंस कर लोग रह रहे हैं। जैसे अगर आपने एक जगह देखी होगी कि ऐसा अगर आपका कमरा है, आपके कमरे में मैंने अगर 50 लोग डाल दिए तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी उससे ज़्यादा है। अगर हम आपके कमरे में 60 लोग डाल दिए माना हुआ, तो फिर उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी तो पूरे अर्थ से ज़्यादा हो गई। तो यही है डेंसिटी का मतलब। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि छोटी सी जगह पे कितने ज़्यादा लोग भर रखे हैं हमने, कितना स्टफ़ डाल रखा है अंदर। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में साउथ सेंट्रल एशिया, मतलब जो इंडिया का यहाँ से रशिया का एरिया है, रशिया के साउथ सेंट्रल एशिया, मतलब जो ये कज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान वाला एरिया है, उस इंडिया का भी थोड़ा पार्ट आता होगा उसमें। ये साउथ सेंट्रल एशिया, रशिया का भी पार्ट आ रहा है उसमें, थोड़ा चाइना बांग्लादेश भी आ रहा है। तो फिर साउथ सेंट्रल एशिया में हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की। मतलब पूरे अर्थ में इस जगह पर ज़्यादा डेंसली, मतलब ज़्यादा लोग रह रहे हैं। जैसे देखो, आपका जो स्कूल है उसका इतना एरिया है, और जो आपकी सोसाइटी है उसका भी सेम एरिया है, पर आपके स्कूल में 5000 पीपल रह रहे हैं, पर आपकी सोसाइटी में 200 लोग रह रहे हैं। इससे हमको ये समझ में आ रहा है, पर हमको पता है कि लैंड तो सेम है, पर स्कूल में 5000 लोग हैं पर सोसाइटी में 200 लोग। तो मतलब जो आपका स्कूल वाला एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब भीड़ ज़्यादा है, भीड़, एक कहीं ना लोगों की भीड़ वो इस साउथ सेंट्रल एशिया के रीजन में ज़्यादा है, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, मतलब ये वाला पार्ट, जापान वाला नहीं। हाँ, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जो फैक्टर्स मतलब कॉजेज़ विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब एक जगह पर अगर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वो क्यों रह रहे हैं,
पॉपुलेशन इतनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, इंडिया में इतने सारे लोग क्यों रहते हैं, लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब रीजंस, कॉजेस, क्यों क्यों पॉपुलेशन इतनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ऐसे फैक्टर्स है। मतलब अगर माना आप बड़े हो गए तो आप कहाँ लेना चाहोगे अपने घर को, मोस्टली लोग दिल्ली रीजन को टारगेट करेंगे क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ईजीली अवेलेबल है। तो इसलिए यही मेन रीज़न है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, वही पॉपुलेशन डेंसिटी है। सो वी विल स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो मतलब पीपल, अगर कोई जगह है वहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो पहला जो वो रीज़न हो सकता है वो जियोग्राफिकल हो सकता है। जियोग्राफिकल मतलब टोपोग्राफी, इसके अंदर आता है टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल, वाटर एंड मिनरल्स। अगर कोई एरिया है उसकी टोपोग्राफी का मतलब प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज। टोपोग्राफी का मतलब जो सतह कैसी है उस जगह की, टोपोग्राफी लैंड टाइप कैसा है उसका, टोपोग्राफी वही कहता है कि द पीपल ऑलवेज प्रेफर्स टू लिव इन प्लेन्स पे लोग रहना पसंद करते हैं। अब दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा रहता है, ज़्यादा ठंडा है, ज़्यादा गर्म है। तो वही क्लाइमेट के अंदर आता है कि गर्मी ज़्यादा है उस जगह पर, ठंडी ज़्यादा है उस जगह पर। तो पीपल मॉडरेट टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। तीसरा क्या है, सॉइल। सॉइल मतलब जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होती है वहाँ पर रीजन मोर ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है। जैसे हरियाणा रीजन देख सकते हो आप, नाइल रीजन देख सकते हो आप इजिप्ट में। तो ये उसके एग्जांपल्स है। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर। भाई जहाँ पानी है जल ही जीवन है। जहाँ पानी है वो बहुत मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, हरियाणा रीजन, हरिद्वार बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है बिकॉज ऑफ वाटर। मिनरल्स का मतलब कि पीपल अट्रैक्ट होते हैं जहाँ उनको पता चलता है कि रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे दुबई दुबई में पेट्रोलियम मिनरल्स के बहुत वो है, लार्ज सोर्स में अवेलेबल है, लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। तो पीपल अट्रैक्ट हो जाते हैं उस जगह के लिए जहाँ पर मोर अमाउंट, जहाँ पर रिसेंटली पता चलता है कि मिनरल्स है तो वहाँ पर पीपल रहना शुरू कर देते हैं। जैसे डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। ऑयल इन द मिडिल ईस्ट का मतलब पोर्चुगल, वो सारे रीजन दे आर पॉपुलेटेड बिकॉज देयर आर मिनरल्स अफेक्ट्स द पॉपुलेशन ऑफ पीपल ऑन द अर्थ। 5 फैक्टर पढ़े हमने। टोपोग्राफी का मतलब कि क्या है कि कैसा है लैंड, कैसा है, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेट्यू रीजन है। ये लोग कहाँ पसंद करते हैं रहना, लोग प्लेन्स में पसंद करते रहना, माउंटेन्स में नहीं करते पसंद। जैसे हिमालय माउंटेन में कोई रहता है नहीं रहता। क्लाइमेट का मतलब ज़्यादा डेंस, ज़्यादा गर्मी है, जैसे राजस्थान में कोई नहीं रहता, कि रशिया में ज़्यादातर कोई नहीं रहता, अंटार्कटिका में तो कोई रह ही नहीं पाता। पीपल को मॉडरेट क्लाइमेट पसंद है तो वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है। सॉइल का मतलब फर्टाइल सॉइल है तो फिर वहाँ पर पीपल रहना शुरू करते हैं। इस सॉइल का टेक्सचर कैसा है वहाँ पर, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया में है। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर। कि जहाँ पीपल वहाँ रहते हैं जहाँ पर वाटर की एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। जैसे आप राजस्थान में देख लो या फिर कोई और जगह पे देख लो, वहाँ पर पानी के लिए 5-5 किलोमीटर दूर चल कर जाना पड़ता है। पीपल वहाँ रहते हैं जहाँ पर वाटर की एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। और पाँचवा है मिनरल्स ये थोड़ा नया टॉपिक है, पर मोस्टली पीपल को लालच आ जाती है जहाँ पर उनको पता चलता है कि ज़मीन में मिनरल्स है तो वहाँ पर वो रहना शुरू करते हैं। दूसरा क्या है, सोशल। पहला जोग्राफिकल फैक्टर्स था, दूसरा है सोशल फैक्टर्स। सोशल का मतलब सामाजिक, सामाजिक सामाजिक फैक्टर्स। जहाँ पर सोसाइटी बढ़िया है मतलब बेटर हाउसिंग है, बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, बेटर स्कूल्स,
मतलब या फिर एजुकेशन है, वो जगह ज़्यादा पॉपुलेटेड होगी। सोशल फैक्टर्स का मतलब जहाँ पर सोसाइटी अच्छी है, मतलब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे जहाँ पर बेटर हाउसिंग, ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा लैंड है, ज़्यादा हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, वो लोग ज़्यादा ज़्यादा वो एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड रहते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी ज़्यादा है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी ज़्यादा है, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। और जहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा बढ़िया होता है, जैसे उत्तराखंड में ज़्यादा, उत्तराखंड के उस एरियाज़ में, जैसे विलेज एरियाज़ में क्या होता है कि ज़्यादा एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर पीपल कहाँ जाते हैं, देहरादून में जाते हैं। देहरादून में तो वही एजुकेशन है, तभी देहरादून डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? अब पुणे में भी सेम है कि पीपल ज़्यादा वहाँ रहते हैं जहाँ पर बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, बेटर हॉस्पिटलिटी है और बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज़ है। ये सोशल फैक्टर्स हो गए। दूसरा क्या हो, कल्चरल फैक्टर्स, ये इंडिया में बहुत अप्लाई होता है। लोग वृंदावन 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 मथुरा मथुरा जेरूसलम, यहाँ पर क्यों रहते हैं? क्योंकि ये उनसे उनके रिलीजन के सेंटिमेंट्स अफेक्टेड है इस रीजन पे, तो इसलिए पीपल इन जगहों पर रहते हैं। कल्चरल फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, कल्चर की संस्कृति। मथुरा में लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि वो कृष्ण भगवान की जगह है, तो मतलब पीपल की वहाँ पर सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो इसलिए पीपल मथुरा में रहते हैं। सेम जेरूसलम एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर भी लोग, मुस्लिम कंट्री नहीं, मुस्लिम सिटी है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पर मक्का मदीना है, मक्का मदीना। और अनदर क्या है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब जहाँ पैसा वहाँ पॉपुलेशन, जहाँ पैसा वहाँ पॉपुलेशन। जैसे बेस्ट एग्जांपल पर आपकी बुक में भी है वो, मुंबई। मुंबई को क्या कहते हैं, सपनों का शहर मुंबई। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट रेट है। लोग क्या जाते हैं, लोग बोलते हैं कि अपने सपने पूरे करने मुंबई जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट रेट है, तो इसलिए वो जगह ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो इकोनॉमिक मतलब जहाँ ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, वो जगह ज़्यादा पॉपुलेटेड है। हमने फैक्टर्स में चार फैक्टर पढ़े, जियोग्राफिकल फैक्टर्स के 5 फैक्टर पढ़े, सोशल पढ़े, सोसाइटी कैसी है, हाउसिंग कैसा है वो भी पढ़ा, कल्चरल फैक्टर्स पढ़े हमने कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े रहते हैं पीपल के, इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ा कि पैसा जहाँ पैसा वहाँ लोग। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का मतलब हमको उसकी हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, उसी कोई पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। मतलब पीपल के नंबर में चेंज आना, कभी बढ़ना कभी घटना, तो फिर उसी को ही पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। सिंपल एज इट इज़। पॉपुलेशन चेंज क्यों होती है, बहुत आसान है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन चेंज। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या फैक्टर्स होंगे, पर जब अगर आप थोड़ा दिमाग लाओगे ऐसे ही तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 फैक्टर हैं भाई बस, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन। लोग बढ़ते और घटते कैसे हैं भाई, अगर लोग पैदा हो रहे हैं तो फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे इंडिया में लोग पैदा ही होते जा रहे हैं तो फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है।
जैसे साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ में अगर लोग ज़्यादा मर रहे हैं तो उसकी पॉपुलेशन घट रही है। और तीसरा माइग्रेशन, मतलब मूवमेंट। माइग्रेशन हम तीनों को ब्रीफली समझेंगे। तो बर्थ को हम बर्थ नहीं कहेंगे, बर्थ को कहेंगे बर्थ रेट। बर्थ रेट। देखो इससे पहले एक और चीज़ समझा देता हूँ, एक और टॉपिक समझा देता हूँ मैं आपको। दैट इज़ इन इन 1800 इन 1800 पॉपुलेशन कितनी थी? 1 बिलियन। बट इन 19 1804 इन 1959 पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गई। तीसरा इन 1999 पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई। मतलब मतलब इसका मतलब ये हुआ 1804 में, द ईयर 1804 में 1 बिलियन पॉपुलेशन थी। उसके 155 ईयर्स बाद पॉपुलेशन क्या? 3 टाइम्स बढ़ी। ठीक है। पर उसके कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस? 40 अप्रॉक्स 40। पर इन नेक्स्ट 40 ईयर्स पॉपुलेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई। मतलब 155 ईयर्स में बस पॉपुलेशन कितनी हुई? 3 टाइम्स इंक्रीज हुई बस। पर 40 साल में बस जस्ट इन 40 ईयर्स वो पॉपुलेशन उतनी ही लगभग बढ़ गई। ये कैसे जादू थोड़ी ना हो गया। इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज हुई क्योंकि इन आफ्टर द ईयर 1959 कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज़ आई, बेटर फूड सप्लाई हुआ, बेटर मेडिसिन्स बनी, डेथ्स कम हुई। इसी के कारण पॉपुलेशन 1999 में 6 बिलियन हो गई इन जस्ट 40 ईयर्स। 1804 में क्या हुआ था? 1804 में मतलब 1959 तक वॉर्स हो रही थी बहुत ज़्यादा। हाइजीन प्रॉपर नहीं थी, इसलिए लोग मर रहे थे। डेथ्स बहुत ज़्यादा थी। क्या था? मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं थी। तो इसलिए पॉपुलेशन इन 155 ईयर्स में थी 3 बिलियन बढ़ी। पर इन 40 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ कि इन 40 साल में ही पॉपुलेशन 3 बिलियन और बढ़ गई। तो मतलब इन अपकमिंग ईयर्स देखा जा सकता है कि ये पॉपुलेशन बढ़ती है। पर अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया ना चाहते हुए भी, तो ये पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो सकती है। तो फिर मूविंग टू बर्थ रेट का मतलब हुआ द नंबर ऑफ पीपल लिव बर्थ इन पर 1000 पीपल। और डेथ रेट भी सेम हुआ, द नंबर ऑफ पीपल द डेथ्स आर मेजर्ड द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। बर्थ रेट क्या हुआ? नंबर ऑफ पीपल पर 1000। जैसे आपका कोई सोसाइटी में आप रहते हो, वहाँ पर अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया तो फिर उस सोसाइटी की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो बर्थ रेट जो होता है, जो बर्थ को मेज़र करा जाता है वो बर्थ रेट में मेज़र करा जाता है। मतलब कितने बच्चों ने जन्म लिया हर पर 1000 लोगों में। जैसे हम कोई 1000 लोग हैं, ठीक है। उन 1000 लोग में से जिसे हमने देखा अभी टाइम जितना भी हो रहा है, जैसे 5:15 हो रहा है, तो फिर इस 5:15 पे जो 1000 लोग हैं उनमें से कितने बर्थ हो रखे हैं, उसी को ही हम बर्थ रेट कहते हैं। डेथ रेट का मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ पीपल डेथ्स पर 1000 पीपल। हर 1000 पीपल में कितनी डेथ्स हो रही है? 5:15 टाइम पे कितनी डेथ हुई हर 1000 पीपल में? जैसे आपकी दिल्ली में देखा जाए इस समय पर, या फिर इस साल को भी दिया जा सकता है, इस समय पे
हर 1000 पीपल में कितनी डेथ हुई है, उसी को ही डेथ रेट कहते हैं। तीसरा, माइग्रेशन। माइग्रेशन माइग्रेशन क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ पीपल। मूवमेंट ऑफ पीपल, जैसे आप रह रहे हो, अपनी सोसाइटी में रह रहे हो, आप दूसरी सोसाइटी में रह चले गए, तो आप वहाँ से इधर से उधर माइग्रेट कर दिए, तो फिर आपकी सोसाइटी की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, सोसाइटी की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। एज सिंपल एज इट। माइग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इन माइग्रेशन, जिसको कहते हैं हम इमिग्रेशन। दूसरा होता है आउट माइग्रेशन, उसे हम कहते हैं एमिग्रेशन। जैसे आप इंडिया में रह रहे हो, आप अपने इंडिया को बहुत पसंद करते हो, पर फ्यूचर में आप माना बात यूएसए चले गए, इंडिया, तो फिर इंडिया वाले आपको एमिग्रेंट्स कहेंगे कि आप इंडिया छोड़ कर गए, तो इंडिया के लिए आप एमिग्रेंट्स हो गए। पर आप यूएसए में आए, तो यूएसए के लिए आप इमिग्रेंट्स हो गए। आपने इंडिया छोड़ा, तो फिर आपने इंडिया को छोड़ा, तो फिर आप इंडिया के लिए आप आउट माइग्रेटर्स हो गए। इंडिया से बाहर निकले, तो इंडिया के लिए आप एमिग्रेंट्स हो गए। पर आप यूएसए में आए, तो यूएसए वाले बोलेंगे कि आप हमारे लिए इन माइग्रेटर्स हो, अब हमारी लैंड में घुसे। तो डेफिनेशन ये है, व्हेन अ पर्सन joins leaves in another country is out migration, when a person enters in a country is immigration। आपने अपनी सोसाइटी छोड़ी, तो आपकी सोसाइटी के लिए बोलेंगे कि ये हमारे यहाँ से चले गया, ये हमारी जगह से आउट माइग्रेट हो गया। और ये तो दूसरी सोसाइटी में पहुँचे आप, तो फिर वो बोलेंगे कि हमारी सोसाइटी में आ गया, ये हमारी सोसाइटी का इन माइग्रेटर है। तो ऐसी ही माइग्रेशन में, जैसे मैंने बोला इन माइग्रेशन, हम इस माइग्रेशन को पॉपुलेशन के बेसिस में समझेंगे। तो माइग्रेशन मतलब जो जैसे यूएसए है और आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन मोस्टली इस वजह से इंक्रीज़ होती है कि पीपल वहाँ माइग्रेट करते हैं। इसी के कारण यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, मैंने क्या बोला आपसे कि 3 तरीके से पॉपुलेशन होती है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। ये तो डेथ्स, बर्थ और माइग्रेशन। तो फिर यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन माइग्रेशन के कारण इंक्रीज़ होती है। और दूसरा आउट माइग्रेशन, सूडान। सूडान एक कंट्री है, वो पॉपुलेशन की उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि वो उस जगह से लोग चले जाते हैं। तो फिर सूडान पॉपुलेशन क्राइसिस फेस कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आउट माइग्रेटर्स हैं। आउट मतलब सूडान की कंट्री से बाहर चले जाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मतलब पॉपुलेशन की चेंज होने का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज होती है। देखो, यहाँ पर ये टॉपिक बहुत छोटा है, पर यहाँ 2 घंटे दी गई है कि अगर मैंने बोला, जैसे मैंने बोला कि आपकी सोसाइटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इससे हम एक आइडिया को ले सकते हैं कि आपकी सोसाइटी बहुत अच्छी है, वहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स होते होंगे, तो इसीलिए वहाँ पर पीपल ने रहना अच्छा लगा। तो उसी को ही हम कंट्री के बेसिस पे अभी समझेंगे। जैसे केनिया है, केनिया की पॉपुलेशन क्या है? कम है। केनिया की पॉपुलेशन कम है, पर जो बर्थ, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा जन्म लेते हैं, पर डेथ्स भी ज़्यादा होती है। केनिया एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, अनसिविलाइज्ड है, हाइजीन बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी डिजीज़ है। उसी के कारण वहाँ बच्चे तो बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं, पर वो रह नहीं पाते हैं, तो उसी से उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। पर एक यूके कंट्री है,
साउथ अमेरिका में, उसकी पॉपुलेशन भी कम है, पर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। मतलब बच्चे जन्म तो कम ले रहे हैं पर वो मर भी नहीं रहे हैं। कम बच्चे जन्म ले रहे हैं पर कम टाइम तक, मतलब ज़्यादा टाइम तक रह रहे हैं, डेथ उनकी हो नहीं रही है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि यूके के पीपल को ज़्यादा वो नहीं होगा, वहाँ पर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होगी, ताकि वहाँ पर अच्छा एजुकेशन होगा, तो इसलिए वहाँ पर डिजीज़ेस नहीं होगी वहाँ पर, तभी वहाँ पर लोग ज़्यादा डेथ्स नहीं हो रही है वहाँ पर। और एक और टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉपुलेशन कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है टाइप, मतलब द टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज़ पॉपुलेशन कंपोजिशन। मतलब जो पॉपुलेशन रह रही है, जो इंडिया में पॉपुलेशन रह रही है, वो पढ़ी लिखी है अनपढ़ है, वो उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। मैंने क्या बोला, पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है पॉपुलेशन के टाइप्स तो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपका एज, सेक्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल। जैसे इंडिया है, इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो क्या, कौन सी एज डोमिनेंट है। जैसे इंडिया को क्या, कौन सी ग्रोइंग कंट्री है, तो मतलब वहाँ पर यूथ ज़्यादा है, मतलब 20 से 60 ईयर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन का टाइप क्या है, एज, सेक्स की, ज़्यादा वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है कि फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो इस तरह हेल्थ फैसिलिटीज़ सब में आती है। चौथा है ऑक्यूपेशन, जो पॉपुलेशन का जो टाइप है उसमें लोग एम्प्लॉयड है कि एम्प्लॉयड नहीं है, उनके पास ऑक्यूपेशन है, जॉब है कि नहीं है। पांचवा है इनकम लेवल, उनकी इनकम क्या है। जैसे मैंने बोला कि आपकी क्लास में क्या है, बहुत पॉपुलेशन है, पर उस पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है। कुछ बच्चे टॉपर्स होंगे, कुछ मिडिल बेंचर्स होंगे, कुछ बैक बेंचर्स होंगे, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे करते होंगे, कुछ कल्चरली अच्छे होंगे, कुछ की अलग ड्राइंग अच्छी होगी। तो फिर यही कंपोजिशन होता है, मतलब पॉपुलेशन के टाइप, पॉपुलेशन के वेरिएशंस। तो इस पॉपुलेशन का कंपोजिशन जो होता है वो हमको बताता है कि मेल और फीमेल कितने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो फिर जो पॉपुलेशन कंपोजिशन को हम कैसे समझते हैं, एक होता है पिरामिड, उस पिरामिड को हम कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड, या फिर एज सेक्स पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड। ये एक पिरामिड होता है, ठीक है, उससे हम पॉपुलेशन के टाइप को समझते हैं। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। सो ऐसे होता है पिरामिड। फर्स्टली हम एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में होगा आपका एज ग्रुप, वाई एक्सिस में होगा आपका परसेंट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे एज ग्रुप ये हो गई 0 to 5, 10 to 20, 30, कुछ ऐसा। परसेंट होगी 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। तब फिर इस पिरामिड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ज़ीरो से इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा मेल, एक पार्ट होगा मेल का, तो जैसे अगर इस पार्ट को मेल मान लेते हैं, एक पार्ट होगा फीमेल का। तो फिर इस पॉपुलेशन पिरामिड को समझते कैसे हैं, फिर एक मैं ढंग से बनाता हूँ, उसमें ये लिखूंगा नहीं मैं। तो फिर देखो, जैसे किसी कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से, इस टाइप से। ये एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, अगर आप आउटर उसको देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा।
इसी को पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। फिर देखो जो नीचे वाला जो ये बेस होता है ना, ये बेस को शो करता है कि बर्थ रेट को शो करता है ये कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं। तो जैसे ये मैंने बोला 0 to 4 है, तो फिर जैसे ये इंक्रीज़ होते जा रहा है तो हमको दिख रहा है जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर जो ये बेस ये चौड़ा साइज़ है ये डिक्रीज़ होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। मतलब जैसे ही बच्चे ये 0 to 4 है, जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है तो फिर ये मरते जा रहे हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल था। अब हम लेंगे कि इसके 3 कंट्रीज़ है आपके बुक में केनिया का। पहले हम केनिया का पॉपुलेशन पिरामिड को समझेंगे। केनिया का पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस टाइप का है। मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे जन्म तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं पर वो अपनी मिडिल एज में भी बहुत मज़ा आया है। मतलब 0 to मतलब बच्चे 10 साल तक तो जी रहे हैं, और 10 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक वो बहुत मर रहे हैं। तो 60 साल के ऊपर तक तो वो रह ही नहीं पा रहे हैं। अगर हमको जो चौड़ा साइज दिखता है मतलब बहुत ज़्यादा है, छोटा सा दिखता है मतलब लोग बहुत कम है। दूसरा पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? इंडिया का। इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का, इस टाइप का। इससे ये समझ रहे हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो, इंडिया का जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट मतलब लोग तो ठीक ठाक जन्म ले रहे हैं ना, ज़्यादा। केनिया का तो ज़्यादा ही ब्रॉडर था, ज़्यादा जन्म मतलब ठीक जन्म ले रहे हैं, पर वो सरवाइव कर पा रहे हैं, वो सरवाइव कर पा रहे हैं। मतलब उनकी डेथ जल्दी नहीं हो रही है। जैसे कीनिया की तो डेथ, कीनिया में लोगों की तो डेथ जल्दी हो जाती है, इंडिया में लोग 60 साल की उम्र तक सरवाइव कर पा रहे हैं अच्छे ढंग से। तो मतलब इंडिया की बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट कम है। इसको हाई नहीं कह सकते, कांस्टेंट कह रही हैं, ज़्यादा ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है, और डेथ रेट कम है। तो इसी को इसलिए हम इंडिया को कहते हैं, वेट, तभी नहीं, हाँ, हम इंडिया को कहते हैं डेवलपिंग कंट्री। एक कंट्री डेवलप कैसे करती है? अगर उसकी जो लोग हैं वहाँ पर अगर वो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तभी वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री होगी। तो काम कौन कौन से लोग करते हैं? जिनकी उम्र 18+ है, मतलब जो ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक क्लास है। तो मतलब इंडिया में इकोनॉमिक क्लास ज़्यादा है, इंडिया में लोग अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो इसलिए इंडिया डेवलप हो रही है। और डेथ रेट भी उतना नहीं है, तो फिर डेट्स वाई इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, बिकॉज इट हैव हाई बर्थ रेट एज वेल एज लो डेथ रेट। द पीपल विच सर्वाइव्स इन इंडिया सर्वाइव स्टिल द एज ग्रुप ऑफ 60 to 64। ये क्या है? जापान का पॉपुलेशन पिरामिड। जापान का पॉपुलेशन पिरामिड बहुत इंटरेस्टिंग है, इस टाइप का, ये बोतल की तरह। इसमें नीचे का सबसे हमको पता चल गया, नीचे का मतलब बर्थ है, बर्थ हमको छोटा दिख रहा है तो मतलब बर्थ रेट कम होगा। डेथ मतलब ये हमको ज़्यादा दिख रहा है इस पार्ट का, तो मतलब डेथ रेट भी कम होगा। जापान में ऐसा है कि बच्चे ज़्यादा जन्म नहीं लेते हैं, पर जितने जन्म लेते हैं वो सारे के सारे सर्वाइव करते हैं, बहुत टाइम तक सर्वाइव करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चे तो कम हैं, पर उम्र के बढ़ते बढ़ते वो इतने सारे कैसे बन गए? ये दूसरी जनरेशन के बच्चे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप दे पता है कि जापान में बच्चे कम जन्म लेते हैं, पर यहाँ पर ये इनका बर्थ रेट कम है पर सर्वाइवल रेट ज़्यादा कैसे हो रहा है? देखो, जो ये 0 to, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है ये करंट ईयर का लिया जाता है, मतलब ईयर वाइज लिया जाता है। जैसे
11 का पिरामिड है माना बात, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमने देखा कि 0 से 10 के बीच में इतने बच्चे हैं। तो फिर जो ये बच्चे होंगे ये 2012 में कुछ 10 साल के बाद 2000 कितने में 2021 में ये बच्चे इधर आ जाएंगे। ये इनका एज ग्रुप यहाँ आएगा, तो फिर यहाँ आएगा, तो फिर यहाँ आएगा, तो फिर यहाँ, तो फिर यहाँ, तो फिर यहाँ, तो फिर जो इनके बच्चे होंगे। तो ऐसे ही जापान का पॉपुलेशन पिरामिड है। जापान की पॉपुलेशन पिरामिड से हमको ये समझ में आता है कि जापान में पॉपुलेशन पहले पहले बर्थ रेट जापान का हाई था, पर करंट ईयर उसका उनका बर्थ रेट कम है। तो जो हमको ये ब्रॉडर एंड दिख रहा है ना यहाँ पर बीच में, ब्रॉडर एंड पता क्यों है? ये ब्रॉडर एंड इसलिए है क्योंकि जापान में पहले पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो मतलब ये बच्चे जो ये हैं ये पहले के हैं। और अब देखो हम नीचे देखते हैं, तो मतलब अब माना बात जैसे ये वाला बैच हो गया 2009 का बैच है ये। तो मैंने आपको समझाया कि ये पीढ़ी बाय पीढ़ी आगे बढ़ते रहता है। तो फिर जो पॉपुलेशन पिरामिड वो करंट हैपनिंग बताता है ना, करंट हैपनिंग। तो करंटली जापान का बर्थ रेट कम है, डेथ रेट भी कम है। आप जापान में देखते होंगे कि जापान में मोस्टली हमको दिखता है कि ये 100 साल की महिला है कोई, इतने ज़्यादा ईयर्स तक सर्वाइव कर पाते हैं। तो क्योंकि जापान में अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है क्या है, और वो क्या हाइजीन बहुत प्रॉपर है। That's why there are very low deaths in Japan. So that's the end of the chapter. I hope you liked this explanation video. I never ask you for likes, but if you like this video genuinely, then you can like. If you don't like, then dislike it. So that's it for today, guys. Bye.